Good morning, student. Tell the name of the system when both the aspects of a transaction, that is debit and credit, are recorded. Double entry system. Very good. Now tell the name of system where only one aspect of the transactions are recorded, that is either debit or credit is recorded in the books of account, or sometime when both aspect is recorded in books of accounts. Single entry system. Very good, my dear student. Today I shall discuss about single entry system or accounts from incomplete records. Before going to topic, I would like to discuss the learning outcomes of this topic. Now, what are the learning outcomes? After going through this topic, the student will be able to state the meaning and feature of incomplete records and their uses and limitations. Second, develop the understanding and skill of computation of profit or loss using the statement of affair method. Introduction. It is not necessary to a small business to maintain a books of account under double entry system. Second, they are usually happy with the minimum required information. Third, thus they are adopting a different method which is came to know as incomplete सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. पहला में स्मॉल बिजनेस जो है एक कई ज़रूरी नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम से ही मेंटेन करें, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है क्वालिफाइड अकाउंटेंट हायर करने के लिए. दूसरा, वो लोग केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरा करना चाहते हैं. थर्ड जो है वो लोग डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं. कहीं पर ट्रांजैक्शन का दोनों आइदर डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करते हैं, या तो कभी कभी वन एक्सपेक्ट रिकॉर्ड करते हैं आइदर डेबिट और क्रेडिट. इसलिए उसको हम लोग इनकम्प्लीट सिस्टम अकाउंटिंग कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम? An accounting system which is not based on double entry system is known as accounts from incomplete records. It may be called as single entry system of accounting. इसका मतलब है एक अकाउंटिंग सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहीं पर फॉलो होता है, कहीं पर नहीं होता है. ट्रांजैक्शन का कहीं पर डबल दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड होता है, कहीं पर एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड होता है. उसी का हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम?
First feature is maintained by a small business organization. This system under this system, accounts are maintained by the small business organization because they are not able to hire qualified accountant or afford qualified accountant. So this system is generally maintained by the small business organization. Second, it usually follow cash basis of accounting. Single entity system follow the cash basis of accounting. It means generally all cash receipts and cash payments are recorded in this system. Credit accrual basis of accounting is not followed here. Third, such system maintain only personal accounts and cash book. In this system, the small businessman maintain the personal account of debtor and creditors and a simple cash book. यहाँ पर केवल डेटर्स और क्रेडिटर्स का एक पर्सनल अकाउंट होता है, लेजर होता है, और एक कैश बुक बिजनेसमैन मेंटेन करता है. फोर्थ, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिफ्लेक्टेड in cash book, whereas personal accounts reflected in positions of debtors and creditor. इसमें एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग कैश बुक से प्राप्त कर सकते हैं, और जो पर्सनल अकाउंट्स है और डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं. Now, what are the difference between double entry system and single entry system or accounts from incomplete records? First is double entry system, second is accounts from incomplete records. In double entry system, both debit and credit aspects of all transactions are recorded. यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, डेबिट और क्रेडिट. इट इज ए मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री, वन एंट्री एंड नो एंट्री. ये जो सिस्टम है कहीं कहीं पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, कहीं पर ट्रांजैक्शन का एक ही एक्सपेक्ट डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड करता है, कहीं पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करता. सेकेंड डिफरेंस इज लेजर कंटेंस पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स. यहाँ पर सभी तरह का लेजर होता है, पर्सनल अकाउंट का भी लेजर होता है, रियल अकाउंट का भी होता है, नॉमिनल अकाउंट का. लेकिन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में लेजर कंटेंस पर्सनल अकाउंट्स अकाउंट. यहाँ पर लेजर जनरली पर्सनल अकाउंट्स का ही पाया जाता है. वेरियस सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन इन डबल एंट्री सिस्टम. वेरियस सब्सिडरी बुक्स एज फॉर एग्जाम्पल कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, journal proper are maintained, but in accounts from incomplete records no subsidiary books except cash book is maintained. यहाँ पर केवल कैश बुक ही मेंटेन करते हैं, बाकी सब्सिडी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं. फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज पॉसिबल. डबल एंट्री सिस्टम है, इट इज वेरी सिंपल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस and it is possible to prepare trial balance, but in single entity system trial balance cannot be prepared because we cannot get the ledger balances of all accounts. Fifth, trial balance, profit and loss account and balance sheet prepared in a scientific manner. डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम लोग सिस्टमेटिक मैनर में बनाते हैं, और यहाँ पर ओनली रफ एस्टीमेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स इज मेड. लेकिन यहाँ पर केवल यहाँ पर रफ एस्टीमेट के आधार पर प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाकर. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. Now, what are the advantages
ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एडवांटेज इसका क्या क्या है? फर्स्ट इज क्विक एंड ईजी टू मेंटेन। ये जो अकाउंट है बहुत इजी होता है मेंटेन करना और बहुत जल्दी ही आसानी से तैयार हो जाता है, प्रिपेयर होता है, बिकॉज द स्मॉल बिजनेस मैन मेंटेन ओनली पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड ए सिंपल कैश बुक। सेकेंड, डज नॉट रिक्वायर इम्प्लाइंग ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट। ये जो सिस्टम है, बिजनेसमैन जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट हायर नहीं करता, खुद ही वो अकाउंट्स को मेंटेन करता है जनरली। थर्ड है एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ए स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम है एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ए स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली ये सिस्टम जो अडॉप्ट किया जाता है स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो स्मॉल बिजनेस है आसानी से डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर मेंटेन कर सकते हैं, सिंपल कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन मेंटेनिंग ऑल द सब्सिडरी बुक एंड लेजर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? फर्स्ट, improper valuation of asset and liabilities. The asset and liabilities is not properly valued because ledgers are not maintained, registers are not maintained for asset and liabilities, so it is very difficult to find the value of asset and liability correctly. Second, difficult to detect errors and fraud. It is very difficult to detect any errors or fraud इन सिंगल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना मुश्किल है, ऐसे एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। थर्ड, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैनट बी गारंटीड। डबल एंट्री सिस्टम में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक, लेजर पोस्टिंग का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं हो सकता। फोर्थ, नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस। और सबसे बड़ी बात है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ, इनकम्प्लीट एंड अनरियलिस्टिक रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पर कोई भी जो रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस अनरियलिस्टिक होता है। कोई भी ट्रेडिंग करते हैं उसका प्रॉफिट लॉस अनरियलिस्टिक होता है। फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, कोई भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग आसानी से पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? There are two methods of calculating profit or loss under accounts from incomplete records. दो मेथड है प्रॉफिट लॉस निकालने का। पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड सेकंड इन कन्वर्सन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं जहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकलता है, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं जहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, और उसको लेकर हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। कन्वर्सन मेथड में सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, और जो मिसिंग फिगर है उसको निकाला जाता है, और वहाँ से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो दो मेथड है फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट वेयर in the right hand side assets are written and in the left hand side liabilities are written. एसेट साइड में आप लोग जानते ही हैं क्या क्या हो सकता है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, सन्डी डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब रहता है। इसके अलावा और भी एसेट्स हो सकता है।
लायबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है, लोन फ्रॉम बैंक, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटी रहता है। इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये आपका टोटल एसेट साइड का टोटल से टोटल है, जो लायबिलिटी साइड का टोटल है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के पहले टोटल करते हैं, टोटल एसेट से टोटल लायबिलिटी डिडक्ट करते हैं, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर जो आएगा कैपिटल आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट में बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाएंगे, साल का अंत में बनाएंगे एसेट और लायबिलिटी को लेकर, तो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। इस तरह से हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसके लिए एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। इसमें क्या क्या कॉलम रहता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो इसमें वो क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर से प्राप्त हुआ रहता है। नाउ ये ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग के ऐड करते हैं। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इज द एनी गुड्स और कैश विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज और पर्सनल यूज, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। उसको ड्राइंग को ऐड करते हैं साल भर का, उसमें से डिडक्ट करेंगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। कोई बिजनेसमैन फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल भी कैपिटल इसको कहते हैं, इंट्रोड्यूस किया, उसको डिडक्ट करेंगे। देन वी गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल प्राप्त होगा। फ्रॉम एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल वी डिडक्ट कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन वी गेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ओपनिंग कैपिटल डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ सकता है या तो लॉस आ सकता है। इफ़ द रिजल्ट इज पॉजिटिव देन इट इज़ प्रॉफिट, इफ़ द रिजल्ट इज नेगेटिव देन इट इज़ लॉस। अगर पॉजिटिव आता है अमाउंट तो प्रॉफिट होता है, अगर नेगेटिव आता है अमाउंट तो लॉस आता है। इस तरह से हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं इन सिंगल एंट्री सिस्टम। Now this is homework. Question number first, calculate profit or loss made during the year from the following information. First, capital in the beginning is rupees 8 lakh. Capital at the end of the year is rupees 6 lakh 20,000. Third, drawing made during the year is 2,50,000. Additional capital introduced in the year is 30,000. From this information, find out profit or loss made during the year and show it me tomorrow. Thank you, my dear student.